आज हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 23। Today we will read Proverbs chapter 23. जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। When you sit down to eat with a ruler, observe carefully what is before you. और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। And put a knife to your throat if you are given to appetite. उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। Do not desire his disciples, for they are deceit food. धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। Do not toil the acquire wealth, be discerning enough to digest. क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगा के निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। When your eyes light on it, it will be gone, for suddenly its broad wings flying like an eagle towards heaven. जो ढाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। Do not eat the bread of a man who is stingy. Do not desire and his delicious. क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। For he is like one who, inwardly calculating, eat and drink. He says to you, but his heart is not with you. क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझ से लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। You will vomit up the morsels that you have eaten and waste your pleasant words. मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। Do not speak in the hearing of a fool, for he will despise the good sense of your words. पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना और ना अनाथों के खेत में घूमना Do घुसना। not move an ancient landmark. Enter the fields of the fearless. क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है और उनका मुकदमा तेरे संग वहीं लड़ेगा। For their Redeemer is strong, he will plead their cause against you. अपना हृदय शिक्षा की और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। Apply your heart to instruction and your ear to words of knowledge. लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो भी वह ना मरेगा। Do not withhold discipline from a child. If you strike him with the rod, he will not die. तू उसको छड़ी से मार कर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। If you strike him with the rod, you will have his soul from the Sheol. हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा। My son, if your heart is wise, my heart too will be glad. और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। My inmost being will exult when your lips speak what the right. तू पापियों के विषय मन में ढा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। Let not your heart envy sinners, but continues in the fear of the Lord all the day. क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। Surely there is no future, and your hope will not cut off. हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। Hear my son, and be wise, and direction your heart in the way. दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। Be not among drunkards or among glutton eaters of meat. क्योंकि पियंकड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। For the drunk and the glutton will become to poverty, and slumber will clothe with them. अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। Listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she is old. सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। Buy truth and do not sell it. Buy wisdom, instruction and understanding. धर्मी का पिता बहुत मगन होता है
और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। The father of a Tyrus will be greatly rejoiced. He who fathers a wise son will be glad in him. तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। Let your father and mother be glad. Let her who bore you rejoice. हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। My son, give me your heart and let your eyes observe my ways. बेशक गहरा खड्डा ठहरती है और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। For a prostitute is a deep pit, and adulteress is a narrow well. वह डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती She है। lies in wait like a robber and increase the terrorists among the mankind. कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके कारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं। Who has woe, who has sorrow, who has strife, who has compelling, who would their cause, who has redness of eyes. उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। Those who tarry long over wine, those who go to try mixed wine. जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ ढीला जाता है तब उसको ना देखना। Do not look at wine when it is red, when it sparkles in the cup and goes down smoothly. क्योंकि अंत में वह सांप के समान डसता है और करैत के समान काटता है। In the end it bites like a serpent and stings like an adder. तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। Your eyes will see strange things and your heart utter perverse things. तू समुंदर के बीच लेटने वाले और मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। You will be like one who lies down in the midst of the sea, like one who lies on the top of a mast. तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पीट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। They struck me, you will say, but I was not hurt. They beat me, but I did not feel it. When shall I awake? I must have another drink. Amen. आप सभी को जय मसीह की। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।